بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کے اس لیکچر میں ہم حصہ نثر کے سبق تشکیل پاکستان کے بارے میں پڑھیں گے۔ تشکیل پاکستان، جس کے مصنف کا نام میاں بشیر احمد ہے۔ آپ 1893 میں پیدا ہوئے اور آپ نے 1971 میں وفات پائی۔ آپ کا شمار ہمارے قومی و ملی رہنماؤں میں ہوتا ہے۔ آپ قائد اعظم کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے۔ تحریک آزادی میں آپ نے نمایاں کردار ادا کیا۔ شعر و ادب کا شوق آپ کو اپنے والد محترم جسٹس میاں بشیر شاہ دین ہمایوں سے ورثے میں ملا۔ آپ نے ہمایوں کے نام سے ایک ادبی رسالہ بھی جاری کیا۔ تحریک پاکستان کے دنوں میں آپ کی نظم ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح بہت مشہور ہوئی۔ آپ کا انداز تحریر افسانوی تھا اور تاریخ پر آپ کی بڑی گہری نظر تھی۔ آپ کی تصانیف درج ذیل ہیں۔ پہلی تصانیف کا نام ہے کارنامہ اسلام، جو کہ اس سبق کا ماخذ بھی ہے، اور دوسری کتاب کا نام ہے مسلمانوں کا ماضی، حال اور مستقبل۔ اب اس سبق کا حوالہ متن دیکھتے ہیں۔ حوالہ متن بنے گا: سبق کا عنوان تشکیل پاکستان، مصنف میاں بشیر احمد، ماخذ کارنامہ اسلام، اور صنف اس کی بنے گی مضمون نگاری۔ اب اس سبق میں جو مشکل الفاظ ہیں ان کو ذرا دیکھتے ہیں۔ غائر کرنا، گہرا مطالعہ کرنا، وسیع کرنا۔ تقلید، پیروی کرنا۔ انحطاط، گھٹنا، زوال کا شکار ہونا۔ عقارت، بے فائدہ، لا حاصل، ضائع، جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ تنسیخ کرنا، منسوخ کرنا، رد کرنا، ختم کر دینا۔ اشتعال انگیز، شعلہ بھڑکانا، آگ بھڑکانا۔ ہٹھ دھرمی، ناانصافی کرنا، ضد کرنا۔ مصمم ارادہ، پکا ارادہ کرنا، مضبوط ارادہ کرنا۔ اقلیت، تعداد میں کم ہونا۔ نتیجہ خیز، مطلب پیدا کرنے والا۔ نیابت الہی، خدا کی قائم مقامی۔ رجائیت، تصویر کا روشن پہلو دیکھنا۔ متمدن، شہر میں بسنے والا، مہذب۔ پہرے، حصے، ٹکڑے۔ فرقہ وارانہ، ہر فرقے کا علیحدہ علیحدہ ہونا۔ نقاد، جاری ہونا، ایک چیز کا دوسری چیز سے نکلنا۔ مدغم، پیوست کیا گیا، لگایا گیا۔ مناقشات، جھگڑے۔ موراز التوا، ظاہر ہونے کی جگہ۔ اس کے بعد ہم اس سبق کے اہم نکات کی بات کرتے ہیں۔ اگر ان نکات کو دیکھ کر اس سبق کا خلاصہ تیار کیا جائے اور سیاق و سباق والا سوال تیار کیا جائے تو یہ آسانی سے تیار ہو جائے گا۔ اس سبق کے اہم نکات بنیں گے: ہندوستان میں اسلامی حکومت، سیاسی تنزلی اور معاشرتی تخریب، سید احمد بریلوی 1857 کا واقعہ، سر سید کی قدامت پسندی، 1885 انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد، سر سید کے رفقا یعنی ساتھی، علی گڑھ تحریک کی وجہ سے قوم میں نئی تحریک، اقبال کا فلسفہ، جنگ اول عظیم، 1971 کا اجلاس، نئے انتخاب، 1937 کا اجلاس، نئے انتخابات، پاکستان کا قیام، مسلمانوں کا نصب العین، جمہوری اصولوں پر عمل، خلفائے راشدین کا عہد۔ اب اس سبق کا جو مرکزی خیال ہے، جو مصنف نے ہمیں بتانے کی کوشش کی ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ مغلیہ سلطنت کا عروج اورنگزیب عالمگیر کی وفات تک رہا۔ اس کے بعد اورنگزیب عالمگیر کے نااہل جانشین سلطنت نہ سنبھال سکے۔ حکومت اندرونی اور بیرونی سازشوں کا شکار ہو گئی۔ آپس کی خانہ جنگی اور کئی جانشینوں کی اقدار کے بعد حصول کی کوشش کرنے لگے، اور اورنگزیب بذات خود ایک نیک اور خدا ترس انسان تھے۔ وہ اپنے بھائی کو ہٹا کر تخت نشین ہوئے۔ اس کے بعد مصنف نے ہمیں یہ بھی بتانے کی کوشش کی ہے کہ 18ویں صدی میں جنگ پلاسی ہوئی اور بنگال کے حکمران نواب سراج الدولہ کو غداروں کی وجہ سے شکست ہوئی۔ اس طرح 18ویں صدی کے اواخر میں ٹیپو سلطان کی شہادت کے ساتھ ہی انگریزوں کے اقتدار کے لیے راستہ ہموار ہونا شروع ہو گیا۔
इसके साथ साथ मुसन्नफ़ ने हमें यह भी बताया है कि मुसलमानों के मजहबी अहया के लिए कई शख्सियतों ने कोशिश की। इनमें इमामुल हद हज़रत शाह वलीउल्लाह और इनके वालिद साहब शाह अब्दुल अजीज़ काबिल ज़िक्र हैं। इसके बाद इस सबक के आखिर में और दरमियान में मुसन्नफ़ ने ये भी हमें बताया है कि मुसन्नफ़ कहते हैं कि 19वीं सदी के शुरू में मुसलमान सियासी और मजहबी तनज़्ज़ुर का शिकार हो रहे थे। एक तरफ बरे सगीर में अंग्रेज़ अपने कदम जमा रहे थे तो दूसरी तरफ पंजाब में सिख जोर पकड़ रहे थे। मुसलमानों की मजहबी आज़ादी ख़त्म हो चुकी थी। इस पर दौर में सैयद अहमद बरेलवी की पैदाइश हुई और इस तरह तहरीक आज़ादी का एक नया बाब शुरू हुआ। आपने 15 साल तक मुसलमानों की मुआशरती इस्लाह की कोशिश की और इस मकसद के लिए पंजाब में मुसलमानों की मजहबी आज़ादी के लिए जिहाद भी किया। आप बचपन ही से बहादुर और निडर थे। बचपन में आप अपने साथियों के साथ हाथ में मजहबी आज़ादी के लिए जिहाद किया करते थे। इसके साथ साथ मुसन्नफ़ ने हमें यह भी बताया है कि इस पाकिस्तान की तहरीक में और दूसरे मुसलमानों की आज़ादी के लिए और यहाँ के लोगों ने और यहाँ के बुज़ुर्गों ने कितनी कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, सारा इस सबक पे तफसील के साथ बयान किया गया है। उसके बाद मुसन्नफ़ ने इस सबक के आखिर में हमें यह भी बताने की कोशिश की है। मुसन्नफ़ वो आइडियालॉजी या सोच बयान करते हैं जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान हासिल किया गया है। पाकिस्तान के मुसलमानों का नस्ब लाइन इस्लाम है और जिसका डंका खुद गर्ज और मफामत परस्त वज़ीरों और मशीरों ने बजा लिया है, बल्कि वो इस्लाम है जो कुरान में अल्लाह ने बयान फरमाया है, जिसके अहकामात कुरान की सूरत में अल्लाह के हबीब पर नाजिल किए गए हैं, जिसकी इल्मी तफसीर अल्लाह के रसूल ने पेश की है। पाकिस्तान एक पुख्ता अकीदे की बुनियाद पर हासिल किया गया। ये पुख्ता अकीदा खुद एतमादी की वो शक्ल है जो इस्लाम ने हर मुसलमान को अता किया है, जिसकी बुनियाद पर हर मुसलमान अनदेखे खुदा पर ईमान रखता है और इसके आगे सजदा सुजूद होता है। इस्लाम का एतकादी निज़ाम गायबाना निज़ाम है जिसमें अनदेखे खुदा के अहकामात की पैरवी की जाती है। ये तो इस सबक का आम तौर पर थोड़ा सा मैंने खुलासा बयान किया है। अगर इस सबक को आप 3-4 दफ़ा पढ़ेंगे तो आपको आसानी से इसका खुलासा आपके जहन में एक स्केच बन जाएगा और 2-3 दफ़ा इसका सियाकुसबा की तशरीह देखेंगे तो ये सबक आपको आसानी से तैयार हो जाएगा। अब हम देखते हैं तशरीह के हवाले से हम जो पैराग्राफ हैं वो कौन से हैं। ये जो पैराग्राफ मैं इधर लिखे हैं, सिर्फ 4 पैराग्राफ लिखे हैं क्योंकि सबक काफ़ी तवील है, तो ये इंतहाई अहम है। 5 से 6 दफ़ा ये मुख्तलिफ बोर्ड्स में सवालात आए हुए हैं, तो लिहाजा इन पैराग्राफ के ऊपर आपने अच्छी नज़र रखनी है। 1886 में सर सैयद ने ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशन, ये पैराग्राफ अहम है। इकबाल ने आकर इस्लामी और मगरबी उलूम के गैर मुताले, ये हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए एक बहुत ही। 1944 में पंजाब में मुस्लिम लीग और यूनियनिस्ट वजारत। इसके बाद इस सबक का खुलासा देखेंगे। इस सबक का खुलासा आप 2.5 पेजेस का लिखेंगे और इस सबक के खुलासे में आप पैराग्राफ बना सकते हैं क्योंकि ये एक कहानी टाइप है और इसमें आप लाजमी एक पैराग्राफ बना सकते हैं। इसके बाद इस सबक में सियाको सबाक के हवाले से जो मुआवन डेटा है वो उसकी बात करते हैं। इसमें जो अशार आएंगे वो दर्ज झैल हैं। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, शहीद का लहू कौम की ज़कात है। शहादत है मतलूब व मकसूद मोमन, ना माले गनीमत ना किश्वर कुशाई। कोई अंदाज़ा कर सकता है इसके ज़ोरे बाजू का, निगाहें मर्द मोमन से बदल जाती हैं तकदीरें। क्या तकदीर ने इसलिए चुनवाए थे तिनके, कि बन जाए नशेमन तो कोई आग लगा दे। वतन की फिक्र कर नादा, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के हैं चर्चे आसमानों में। आईने जवां मर्दा हक गोयो बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रोबाही। मट्टी की मोहब्बत में हम आशिफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं जो वाजिब भी नहीं थे। फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। ये जो मावन शेर मैंने इधर लिखे हैं और इधर आपके सामने पढ़े हैं, तो इनको आप अच्छी तरह से तैयार करेंगे और ये सियाको सबाक की तशरीह में काम आएंगे। इसके बाद इस सबक में
तशरीह के हवाले से जो अहादीस कुरानी आयात बकौल दानश्वर और इकवाल ज़री आएंगी उनकी बात करते हैं। और जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाएं तुम इन्हें मुर्दा मत कहो बल्कि वो ज़िंदा हैं और तुम्हें इसका शऊर नहीं। तो ये अल कुरान कुरानी आयत है, इसको आप मार्कर के साथ लिख सकते हैं। अगर तुम्हें खुदा से मोहब्बत का दावा है तो आओ मेरी पैरवी करो, अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा। बेशक अल्लाह की पकड़ सख्त है, तुम्हारे आमाल ही तुम्हारी बर्बादी का बायस हैं। बादशाहों से क्या खौफ, खौफ तो बादशाहों के बादशाह से होता है। ये फरदोसी का कौल है। बादशाह के कारिंदों के जुल्म की बाज पुरुष भी बादशाह से ही होगी। ये इमाम गजाली का कौल है। ऐ ईमान वालो तुम सीधी और सच्ची बात कहो। अल कुरान ये कुरानी आयत है, ये आप लिख सकते हैं। इसके बाद साबका पर्चा जात के सीरियल इंतखाबी सवालात मैंने कुछ इधर लिखे हैं। वैसे तो इस सबक में तकरीबन 100 या 200 MCQs बन सकते हैं, तो लिहाजा जो अहम MCQs है वो मैं इधर कुछ आपके सामने लिखे हैं। वैसे आप जब भी सबक को तैयार करेंगे एक लाइन पढ़ेंगे, उसमें अगर कोई MCQs बनता होगा उसके ऊपर निशानी लगा लेंगे, तो इस तरह ये पूरे MCQs आपको अच्छी तरह से तैयार हो जाएंगे और आपके इम्तिहानात में कोई MCQs गलत होने का चांस नहीं होगा। इसमें देखते हैं पहला MCQs कौन सा है। कब अलीगढ़ कॉलेज का इफ्तिताह हुआ? 1875, 1877, 78 और 1860। तो इसका दुरुस्त जवाब है 1875 में। सर सैयद ने पंजाब का दौरा कब किया था? 1884 में। सर सैयद के दौरे के बाद लाहौर में तालीमी इदारा कायम किया गया। कौन सा इदारा कायम किया गया था? अंजमन हमायत इस्लाम। इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद कब रखी गई थी? 1885 में। बनारस के हिंदुओं ने उर्दू के बारे में मुखालफ जज्बात का इजहार कब किया था? 1867 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनाने का मकसद क्या था? हिंदुओं की बेहतरी और मुसलमानों का नुकसान करना। ये तो थे अहम इस सबक के MCQs। इस सबक में और भी बहुत सारे MCQs बनते हैं, तो लिहाजा ये आपने खुद तैयार करने हैं। उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपको तश्कील पाकिस्तान का जो सबक है इसमें कोई मसला दरपेश नहीं आएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।